स्क्रीन विजिबल है? शैलेंद्र, अजय, काजल, गाइस? हाँ जी, अवेलेबल है सर। ओके। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट वाज द फिजिकल ईयर। ओके, क्रिएशन ऑफ द फिजिकल ईयर। जो कल हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसका थियोरेटिकली, वेरिएंट V3 K4 जो पार्ट हमने कवर किया था स्टैंडर्ड, सो आज हमारा जो पार्ट रहेगा दैट इज हाउ टू क्रिएट द फिजिकल ईयर। ओके ओके, सो व्हाट इज द टी कोड फॉर क्रिएशन ऑफ फिजिकल ईयर? OXI5। काजल, आई नहीं, थिंक वो यू हैव टेन, राइट? MPG एक्टिविटी में जाके देख सकते हैं ना। देख सकते हैं, बट स्टिल अगर किसी को याद हो, मैंने बताया था शायद काजल ने शायद लिखा था, आई थिंक सो। एनीवे, सो टी कोड जो है, शॉर्टकट की जो टी कोड है फॉर क्रिएशन ऑफ फिजिकल ईयर वेरिएंट दैट इज OB29। इज दैट क्लियर? OB। OB29, OB29। ओके, ओके। OB20। press enter. Now here you can see fiscal year variant. Okay guys, fiscal year variant. Now again going back /n, let's coming to the path SPRO SAP reference IMG, then we'll go to now guys, remember we will not go to enterprise structure. Okay, now we will go to financial accounting, and after that financial accounting global settings. Clear? ओके। Because whatever configuration we are going to do now, that is a part of global settings. Okay, worldwide settings, global settings. Okay, so we ओके। have to, now we have to go to financial accounting, and under financial accounting we have to go to financial accounting global settings. Okay, just go to global settings, then go to ledger. Okay, after that here you will get the things whatever we are going to do globalized. Okay, settings. So like first we will do fiscal year and posting periods, after that your field status. Okay, so this thing we will do here. Okay, so just click on fiscal year, just click on this. Now here you will find maintain fiscal year variant, and after that we will do assign company code to fiscal year variant. Okay, ओके। these three things we have to do here, globalized setting. Okay, let's check the T code again. Additional information, IMG activity, and this display key and IMG activity. Okay, so last for guys, last for alphanumeric OB29. Okay, and T code for assignment of the fiscal year variant to company code is OB37. Okay, OB37. So first we will do OB29. First we will maintain fiscal year variant. So just double click on this. Okay guys, here you will see. Now, as I told you yesterday that V3K4, those are the standard fiscal year variant. Okay, so we do not need to create them. Why? Because it is already into the system by default. Okay, because those are the standard one. So वो already system में रहते हैं. ठीक है, तो basically जो जो एक्चुअल में हमको क्या करना है रियल टाइम में आप लोग को बता रहा हूँ, इवन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी, जो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमको वही यूज़ करना पड़ता है, राइट? बट फॉर लर्निंग पर्पस अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, न्यू एंट्री पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। बट व्हेन यू आर गोइंग टू असाइन, तो हमको जो स्टैंडर्ड है एसएपी के, वी हैव टू फॉलो दोज। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे V3 एंड K4 है, ऑलरेडी वो क्रिएटेड है, तो पोजीशन पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएंट डाल देता हूँ, जैसे V3। ओके, V3 यू विल फाइंड, ये देखिए V3 दिख रहा है आप लोग को, अप्रैल टू, राइट? V3। V6 मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कल, जुलाई टू जून, राइट? वी V9 बताया था अक्टूबर टू सितंबर, यूरोपियन कंट्री का एक ये रहता है। ठीक है, तो ये जो आपको अकाउंटिंग ईयर दिख रही है ना गाइस, ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है,
ये जो V6 है ये बांग्लादेश कंट्री का है, ठीक है। जो V6 है ये बांग्लादेश का है। तो ये स्टैंडर्ड है कुछ, और सेम एज वी हैव अ K4 ऑल्सो। लेट मी टू शो यू K4। ये देखिए K4 है, ठीक है। K4 का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि इनका अकाउंटिंग ईयर एज ए कैलेंडर ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास एक एक क्वेश्चन रेज होता है फॉर इंटरव्यू पर्पस, ऑल्दो आप लोग वर्किंग हो, बट एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल ईयर आर इन SAP, how many types of fiscal year? Okay, so guys, there are two types of fiscal year. First one is calendar year, second one is year dependent year. Okay, this one year dependent year. Calendar year क्या होता है, you know that, okay, that start from January to December. Year dependent जो हम लोग का है, और any accounting period that start from the middle of the year. Okay, that yeah, for V3, V9 or V6. Okay, so all those are the year dependent year. Okay, and K4 is your calendar year. Okay, so K4 का कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम है? मालूम है ना? ये K4 में ईयर शिफ्टिंग यूज नहीं होता है गाइस, रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पे आपको पीरियड दिख रहा होगा, राइट? पीरियड दिख रहा होगा। सो so we don't required for year shifting concept for K4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करने होते पीरियड में, इज दैट क्लियर? कोई नहीं। तो इसके लिए आप क्या है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डायरेक्टली ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सेम इसी तरीके से होता है। अगर आप कैलेंडर ईयर यूज करो, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू गाइस आर यूजिंग द कैलेंडर ईयर, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसी वे में होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, न्यू एंट्री पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। कैलेंडर ईयर अगर आप यूज कर रहे हो, ऑल्दो K4 हम यूज नहीं कर सकते, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है। और गाइस हमारी कंपनी कौन सी थी? टाटा 123, राइट? टाटा मोटर्स, राइट? तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ T1 करके, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट जस्ट आई एम क्रिएटिंग, आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल दो जो अकाउंटिंग पीरियड आपकी कंपनी यूज करती है वो डालना है, ठीक है। अगर वो कैलेंडर ईयर यूज कर रही है, मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो आपको यहाँ पे कैलेंडर ईयर डालना है, ठीक है। ठीक है। कैलेंडर ईयर, और उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि ये कैलेंडर ईयर है, ठीक है। और आगे नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में ऑल्दो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैलेंडर ईयर टाइप करना है या फिर जनवरी टू दिसंबर टाइप करना है। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ठीक है। बट रिमेंबर कि आपको यहाँ पे अगर कैलेंडर ईयर है जनवरी टू दिसंबर, तो आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लियर? यहाँ पे क्लिक करना है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये जो देखा है, ये जो कॉलम है, ये है बेसिकली नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड। सो गाइस, हाउ मेनी पोस्टिंग पीरियड्स आर देयर? 4। पोस्टिंग पीरियड, पोस्टिंग पीरियड 2 ही हुआ ना? गाइस पोस्टिंग पीरियड में पूछ रहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, समझने, पीरियड पूछ रहा हूँ, पोस्टिंग पीरियड। भाई पोस्टिंग पीरियड तो 12 ही रहेंगे ना आप लोग के, 12 मंथ का ईयर होता है ना अकाउंटिंग ईयर, तो पोस्टिंग पीरियड तो 12 के 12 ही पोस्टिंग पीरियड है ना। अच्छा। क्लियर? तो आपके पोस्टिंग पीरियड 12 रहेंगे, ठीक है। और आपका जो रहता है वो रहता है स्पेशल पीरियड्स, ठीक है। स्पेशल, और स्पेशल पीरियड क्या होते हैं गाइस? क्वार्टर वाइज नहीं, यहाँ पे स्पेशल पीरियड होते नहीं, क्वार्टर वाइज भी तो इसमें आ गया, फिर वो तो 12 मंथ में आ जाएगा ना क्वार्टरली। तो यहाँ पे अलग सा कॉलम फिर क्यों दे दिया है? नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स ये दे दिया, जहाँ पे जो कि 4 होते, 4 स्टैंडर्ड है, रिमेंबर। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि समटाइम्स क्या होता है कि जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है ना, बट स्टिल अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं जो पेंडिंग हो रहती हैं, राइट? कुछ काम ऐसा होता है जो पेंडिंग बच जाता है, तो उस केस में टू जस्ट कंप्लीट और जस्ट फिनिश आवर दैट ईयर एंड एक्टिविटीज और पेंडिंग वर्क और जो भी एडजस्टमेंट करना है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए SAP की तरफ से हमें स्टैंडर्ड 4 पीरियड्स दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? वी कैन यूज द 4 periods to complete our year end activities. Is that clear? Or make any adjustment? Is that clear?
बट ये हमेशा हम इसके बाद यूज कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ। ओके, एंड एक चीज और है, आई एम रिपीटिंग अगेन वन मोर थिंग। स्पेशल पीरियड्स का मतलब, अब ये इसका मतलब तो ये हो गया कि 12 मंथ के बाद जो पीरियड आपके शुरू होंगे, राइट? 13, 14, 15, 16। बट अगर जैसे हमारा काउंटिंग पीरियड अप्रैल टू मार्च है, राइट? अब हमारा तो लास्ट मंथ 12 मंथ तो मार्च हो गया। अब नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स का मतलब ये नहीं है कि गाइस आपका अप्रैल मई जून जुलाई आ जाएगा। स्पेशल पीरियड्स में अप्रैल मई जून जुलाई नहीं आएगा, मार्च को ही वो ऐसे क्रिएट करते हैं, मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4। क्लियर? ओके, क्रिएशन होता है वो इस तरीके से किया जाता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस क्लियर। ठीक है ना? जैसे आपको 31 मार्च को खुला रख देगा ना, ओपन रख देगा, उसमें एंट्री हाँ डालते रहो। जाएगा, वो एड ऑन हो जाएगा, मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4। ठीक है, वो आपके स्पेशल पीरियड्स में आ जाते हैं। हाँ, सो अब जैसे एज यूजुअल ये मैं बात कर रहा था आपके K4 की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद एज यूजुअल आपको सेव करना है। ठीक है, जब सेव करोगे तो पॉपअप आएगा, वही जो आता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, आपको सेव करना है। ठीक है, नो नीड टू क्रिएट पीरियड शेयर, क्योंकि इसमें आपका ईयर शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस। ठीक है, ईयर शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यू नो नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट इन कैलेंडर ईयर। वो आपका जनवरी में शुरू होगा और सेम ईयर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो कोई वहां पे चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है आपका K4 कैलेंडर ईयर, इफ यू आर यूजिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ओके, नाउ कमिंग टू द, आई एम गोइंग बैक कि V3 का क्या कॉन्सेप्ट है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, K4 का तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, जैसे क्रिएशन होता है वैसे। ठीक है, अभी आप डिस्क्रिप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कैलेंडर ईयर डालना है या फिर जनवरी टू दिसंबर, जो भी डालना है अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको V3 का दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट। V3, ठीक है, अभी मैं V3 का, ये देखो गाइस V3 है। अभी V3 का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो अप्रैल से मार्च में शुरू हो रहा है, 4 स्पेशल पीरियड्स यहाँ पे भी है, ये सेम कॉन्सेप्ट ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैलेंडर ईयर पे हमने क्लिक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये ईयर डिपेंडेंट ईयर है। बट हम इस पे भी क्लिक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैलेंडर ईयर में। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है, फर्स्ट मैंने आपको बताया, एज यूजुअल आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लो किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, एंड जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पीरियड, ये जो पीरियड्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये देखो गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, दिख रहा है? ये देखो, बट सेम चीज K4 में नहीं थी। ठीक है, K4 में सेम चीज नहीं है। एक सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, एक कॉल आ रहा है। तो ये जो बता रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए यूज तो है ही नहीं यार। हम्म, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे ये गाइस, शैलेंद्र आपका इसका यूज नहीं है, आपका डायरेक्टली यूज मेरे ख्याल से ना पोस्टिंग पीरियड, नॉट पोस्टिंग पे, ट्रांजेक्शन के लिए यूज होगा, राइट? ट्रांजेक्शन हम्म के लिए यूज होगा कि आपको डेटा दिया जा रहा है, आपको पोस्टिंग्स करने हैं, तो आपका वो हम्म होगा। बट आपके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो कंपनीज में स्टेब्लिश करेंगे, ये उनका पार्ट होगा। तो मे बी लेटर ऑन हो सकता है कि आपको भी इस पोजीशन के लिए रिकमेंड किया जाए एज ए कंसल्टेंट। ओके, ठीक है तो ठीक है आप, हाँ, तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। मे बी हो सकता है कि आपको भी किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है इस काम के लिए गाइस। ठीक, ठीक है ठीक। हाँ, तो ये चीज हमको समझना है। ऑल्दो रिक्वायर्ड अभी नहीं दिख रहा होगा, लग रहा होगा क्योंकि आपको वो काम दिया नहीं, आप उसके पार्ट नहीं है। पर जो हम्म लोग आपको काम दे रहे हैं ना, वो लोग ये कर चुके होंगे, सर उन तो लोगों ने ये पार्ट कर चुका होगा। हाँ, ठीक है, तो लेटर ऑन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अभी देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होता है, जस्ट यू टेल मी कि मंथ एंड पीरियड में क्या डिफरेंस आ रहा है।
आपको ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, जो बना हुआ है, जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, यहाँ पे क्या आपको नजर में आ रहा है? मंथ एंड पीरियड में क्या डिफरेंस है? टेल मी द डिफरेंस इन मंथ एंड पीरियड्स। कौन सी में? मंथ एंड पीरियड का डिफरेंस मेरे को बताइए। पीरियड तो आप उसको कह रहे थे ना, फाइनेंशियल ईयर को। नहीं, इसमें मंथ हमारा जो 4 नंबर है ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट हो रहा, तो 1 2 3 4 दे रहा है 4 से। हम्म नहीं, और वो ठीक है, लेकिन मंथ एंड पीरियड में डिफरेंस क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मंथ हमारा कैलेंडर ईयर है और पीरियड हमारा फिजिकल ईयर है। काउंटिंग ईयर है, फिजिकल ईयर है, ठीक है। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये चीज कॉन्फ़िगर करने में, ठीक है। अगर आप V3 यूज करो अप्रैल टू मार्च विथ स्पेशल पीरियड्स, तो रिमेंबर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप पीरियड पे आओ तो पीरियड में मंथ आपका एज यूजुअल होगा, जो आपके कैलेंडर ईयर होते हैं, ठीक है। एज यूजुअल वैसे मंथ होंगे, ठीक है। डेज भी आपके सेम रहेंगे जो एज यूजुअल डेज रहते हैं, ठीक है। बट कमिंग टू पीरियड, तो मेन पार्ट जो कॉन्फ़िगर करने का होगा वो पीरियड है, ठीक है। तो पीरियड हमको उसी हिसाब से यूज करना है जिस हिसाब से पीरियड होते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ फोर्थ मंथ है अप्रैल, वो आपका फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ से आपको एज यूजुअल आपको करना है पीरियड्स एंड टिल। अगर आप देखोगे तो 12 मंथ जो दिसंबर मंथ है वो आपका 9th पीरियड है, ठीक है। अब रिमेनिंग जो है जनवरी फरवरी मार्च, ये 10 11 12 आपके पीरियड होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करें ईयर शिफ्टिंग वाला, ये देखो -1 -1 -1, राइट। राइट। हाँ, सो इस तरीके से हमको ये पार्ट को कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्लियर। एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमको एज यूजुअल यहाँ पे सेव करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जाकर के हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑलरेडी क्योंकि V3 क्रिएट है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मैं डायरेक्टली ये V3 को डायरेक्टली कंपनी से असाइन करूंगा, ठीक है। कंपनी से असाइन कर दूंगा, हमारी कंपनी से। सो दैट मीन्स कि हमारी कंपनी V3 अकाउंटिंग ईयर को यूज कर रही है, क्लियर। तो उसका जो टी कोड है वो मैंने बताया था, OB37, ओके। हाँ, सो यहाँ पे हो जाएगा /N OB37, ओके। सेम, मैंने आप लोग को बताया था इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसका क्या टी कोड है, SM12, ठीक है। SM12 एंटर। किस चीज का? जो एरर आता है उसको वो कर दीजिए, या फिर अपना यूजर नेम डाल के इसको सिलेक्ट डिलीट। ओके, जाके वापस कर देंगे। 7 से OB37। यहाँ पे अब आप देखो असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, ठीक है। ओके। आपको ने देखो अपनी कंपनी जो हमने क्रिएट करी थी, लोगों ने उससे अपना अकाउंटिंग ईयर असाइन किया है, ठीक है। तो जस्ट गो टू पोजीशन, यहाँ पे कंपनी कोड डालना है। गाइस हमारा कंपनी कोड क्या था, TA, ओके। जस्ट क्लिक ऑन दिस, यही है टाटा मोटर्स, राइट। यहाँ पे डाल दो V3, ओके। स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, V3 डाल के क्लिक ऑन सेव, ठीक है। ओके। टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेव्ड, राइट। राइट। ठीक है, अभी हम देखते हैं जा करके, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक, अब हम नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के नए पार्ट पे। दैट इज पोस्टिंग पीरियड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो उसका जो टी कोड है वो है OBBO, ओके। OBBO प्रेसेंट पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ओके। तो पहले हमको वेरिएंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें जो हमको कवर करनी है वो हम देख लेते हैं। SPRO प्रेसेंट सब प्रेफरेंस IMG, ये भी ग्लोबल सेटिंग्स है। तो हम डायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। देन लेजर में जाएंगे,
देन अगेन इसी में जाना फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग डे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो हमने ये मेंटेन फिजिकल ईयर भी कर लिया है और असाइन कंपनी को टू फिजिकल, ये हमने राइट। अभी हमको जो करना है वो क्या करना है, ये करना है डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, देन असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, एंड आफ्टर दैट हमको करना है ये थर्ड वाला ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। सो फर्स्ट हम करेंगे डिफाइन वेरिएंट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वेरिएंट डिफाइन करना है, गो टू न्यू एंट्री and define any variant. I am typing TATA, okay. यहाँ पे posting period variant for TATA12, okay. Click on save, सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो वेरिएंट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, इसको हमें असाइन करना है किससे, कंपनी कोड से, हमारी जो कंपनी कोड है उससे असाइन करना है। तो उसका जो टी कोड है वो है OBBP, ओके। So /n OBBP, press enter, okay. Again same, someone is using, okay, no issue. I am showing the path again, the SPRO SAP reference IMG financial accounting, global settings, ledger, yeah, posting period, then this one assign variant to company code, okay. Click on this, now it's open, you can see assign company code to posting period variant। T code क्या बताया मैंने इसका, था सर? हाँ OBBP, OBBP, हाँ, P for Bangalore वाला, ओके। B for Bangalore, B for Bangalore and P for Parrot, ओके। ओके ओके। अब असाइनमेंट कैसे करना है, सेम एज यूजुअल, पोजीशन पे जाओ, कंपनी कोड टाइप करो TATA, क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे वेरिएंट टाइप कर दो TATA, ठीक है, टाटा, जस्ट क्लिक ऑन सेव। ओके, अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमको ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वर्क क्रिएट करना है, ठीक है। अब वो क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो उसका जो टी कोड है वो है 52, ठीक है, OB52, ठीक है, /n OB52। और यहाँ पे व्हेन यू विल गो टू क्रिएट योर ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, तो आपको एक पॉपअप आ रहा है, टाइप योर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो पोस्टिंग पीरियड क्या था, TA, ओके। तो सिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ग्रीन टिक, ओके। इस तरीके से यू विल रिसीव दिस स्क्रीन। अब यहाँ पे हमको इसको फिल करना है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग बैक अगेन, SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंट, हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, देन go to ledger, after that this one, and here open and close posting period, ठीक है, open and close posting period, double click on this, ठीक है। Again type your posting period variants, that is TA Tata, click on this, okay. Now here, now let's understand, go to new entry, we have to click on the new entry। अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि पोस्टिंग पीरियड है क्या, ठीक है। तो बेसिकली गाइस कैसा है ना कि यहाँ पे एसएपी में एक सिनेरियो है जिसमें जो पोस्टिंग पीरियड है ना, आप डिफाइन कर सकते हो कि आप कितने मंथ के लिए पोस्टिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, जैसे आपको 1 मंथ की पोस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे 1 मंथ डालोगे, फ्रॉम पीरियड 1 ईयर, फ्रॉम पीरियड 2 ईयर, ठीक है। सेकेंड मंथ में डाल रहा है तो फ्रॉम पीरियड 2 ईयर, फ्रॉम पीरियड 3, या फिर आप क्वार्टरली भी डाल सकते हो, देन आप हाफ ईयरली भी डाल सकते हो और ईयरली भी डाल सकते हो। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो यहाँ पे बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग योर पोस्टिंग पीरियड। एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉलम ए दिख रहा है ना, ए में, अभी मैं इसको सर्च पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देखो डिफरेंट अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये डिफरेंट अकाउंट क्यों दिख रहे हैं, अब इसका जैसे ये एसेट है, ये कस्टमर है वगैरह। अगर इफ देयर इज अ सिचुएशन कि, और अगर आपको ऐसा एक टास्क मिला है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एसेट की ट्रांजेक्शन आए हैं, ठीक है,
केवल एसेट के ट्रांजेक्शन है 6 महीने के, 3 महीने के, 2 महीने के, जो भी है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉन्फ़िगर दिस, ठीक है। अगर हमें 2 महीने एसेट के ट्रांजेक्शन करने, देन यू कैन सिलेक्ट ए सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे जो भी अकाउंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक करना है वो डाल सकते हो। और यहाँ पे फ्रॉम पीरियड, जिस पीरियड से भी जिस पीरियड तक आपको डालना है वो आप डाल सकते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ करके, ठीक है। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे आप दूसरे भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, बट फॉर लर्निंग पर्पस, ऑल्दो ये सब आपको क्लाइंट की तरफ से डेटा मिला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ठीक है। बट फॉर लर्निंग पर्पस हम यहाँ पे ये लेंगे, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, ठीक है। हम सारी टाइप्स की एंट्री करेंगे, ठीक है। बेसिकली मेन जो होता है वो यही लेना पड़ता है, प्लस वाला साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन टिक कर दो, सो यू विल फाइंड कि प्लस का साइन आ गया है, ठीक है। नाउ फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई देयर इज नो लिमिटेशन, हम अनलिमिटेड पोस्टिंग्स कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पीरियड 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, फ्रॉम पीरियड 1 में हम लोग टाइप करेंगे 1, ओके। हम टाइप करेंगे 101। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर हम डाल देंगे, दैट इज 2024, ओके। यहाँ पे 2 पीरियड में 12, मैं ईयरली ले रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं ईयरली ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सेपरेटली नहीं करूंगा। 2024, ओके। मैंने पूरे 12 मंथ ले लिए। आफ्टर दिस अगेन आई विल पुट हियर 13, ओके, देन 2024 एंड यहाँ पे 16, ठीक है, देन 2024, ठीक है गाइस। व्हाट इज दिस 13 to 16, क्या है ये? नहीं मालूम सर। अच्छा, ये क्या है? ये क्या 1 से 12 तक क्या है? ये तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड हो गया ना। अब देन 13 से 16, गैस करो क्या हो सकता है ये। हमने फिजिकल ईयर में पढ़ा है ना इससे पहले ही। ये नंबर ऑफ जो 13 फोर से डाल रहे 16 थे, 13 से स्पेशल पीरियड। हाँ, स्पेशल पीरियड से, ठीक है। ये हमारे स्पेशल पीरियड है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्पेशल पीरियड का भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको सेव करना है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सेव कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ओके। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, अब मैं आई एम बैक जा रहा हूँ। अब 2 मिनट के लिए मैं एक स्क्रीन पे जा रहा हूँ जहाँ एक्चुअल में ट्रांजैक्शन पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। तो उसका जो टी कोड है वो है FB50, ओके। आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, यहाँ पे कंपनी कोड डाल देता हूँ मैं, TA टाटा, ठीक है। डिस्प्ले शो नहीं हो रही सर, आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन तो शो हो रही है, लेकिन आपने अभी जो भी टी कोड FB वगैरह जो डाले कुछ शो नहीं हुए। FB50 टाइप कर लो, मैं आऊंगा इस पे, मैं वापस से हम लोग आएंगे इस स्क्रीन पे, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि फील्ड स्टेटस क्या है, ठीक है। जो फील्ड स्टेटस वाला पार्ट है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे हमको तो मेन काम तो हमारा यहीं पे है इस, ठीक है। यहीं से हमें ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करना सीखना है क्या होता है, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉन्फ़िगरेशन का हमारा जो पार्ट रह रहा है ना फील्ड स्टेटस, वो क्या है। सो गाइस, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका टी कोड आप लिख लो FB50, ठीक है, फॉर पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का कोड, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड स्टेटस का मतलब क्या है गाइस, सो रिमेंबर दैट ये जो आपको जितनी भी डिटेल्स बॉक्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, कमांड बॉक्स बोलो या डिटेल्स बॉक्स, इनको SAP में फील्ड बोला जाता है, ठीक है। इनको SAP में फील्ड बोला जाता है ना। कमिंग टू द पार्ट स्टेटस, फील्ड स्टेटस, अब स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे स्टेटस का मतलब है कि इन फील्ड का स्टेटस क्या है। स्टेटस में 3 चीजें हैं, एक आपका है ऑप्शनल, एक है रिक्वायर्ड और एक है सप्रेस, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ऑप्शनल का मतलब है, मान लो कि रेफरेंस नंबर, ये फील्ड मेरे लिए ऑप्शनल है, तो वाइल पोस्टिंग एनी ट्रांजेक्शन इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करूं। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपकी ये फील्ड जो है वो ऑप्शनल में है, ठीक है। सेम चीज अगर मान लो ये डॉक्यूमेंट डेट है और पोस्टिंग डेट है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर्ड एंट्री है। दैट मीन्स व्हाट कि व्हाइल पोस्टिंग एनी ट्रांजेक्शन और एनी इनवॉइस एंट्री, मेरे को डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट में फिल करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? वो मैंडेटरी है,
अगर आप फिल नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर शो होगा और आपका काम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जो मैंने बताया सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है कंप्लीटली हिडन। अब हिडन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है, या मान लो ये क्रॉस कंपनी कोड नंबर मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, इस स्क्रीन पे ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एज ए सप्रेस, तो इसका स्टेटस मैं कर दूंगा सप्रेस। अब सप्रेस पे ये क्या होगा? ये जो फील्ड है ना, क्रॉस कंपनी कोड नंबर, ये दिखेगा ही नहीं मेरे को, इस स्क्रीन पे ही नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फील्ड स्टेटस का? क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड स्टेटस आर देयर? हाउ सॉरी, मेनी रिपीट। टाइप्स? कितने फील्ड स्टेटस कितने तरह के? फील्ड स्टेटस है जैसे, मैंडेटरी, ऑप्शनल। हाँ मैंडेटरी, आप उसको बोल सकते हैं रिक्वायर्ड, सेकंड है ऑप्शनल, एंड थर्ड है सप्रेस। ठीक है? हाँ, तो ये चीज हमें ध्यान है। सप्रेस में क्या होगा? आपको स्क्रीन पे ही नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ऑप्शनल में क्या है? ऑप्शनल में आपको स्क्रीन पे दिखेगा बट रिक्वायर्ड नहीं कि आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन फिल करो। इज दैट क्लियर? और रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड में आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, ये स्टेटस है फील्ड का, ये सारे फील्ड होते हैं, जो भी डिटेल्स हम भरते हैं ये फील्ड होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग बैक अगेन फॉर क्रिएशन ऑफ द फील्ड स्टेटस। ठीक है, तो उसका जो टी कोड है वो है OBC4। ओके, OBC4। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज व्यू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ओके, सो हमको यहाँ पे न्यू एंट्री पे जाना है। ठीक है, न्यू एंट्री पे अभी मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। बिफोर टू क्रिएट अ फील्ड स्टेटस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे पहले हम फील्ड स्टेटस क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंडर में मेन जो हमें क्रिएट करना पड़ता है वो ग्रुप करना पड़ता है। ठीक है, बट वो तभी होगा जब हम फील्ड स्टेटस करेंगे। बट मैं अभी आपको एक चीज दिखा, मैं आपको ओरिजिनल फील्ड स्टेटस दिखाता हूँ जो एक्चुअल में यूज होते हैं, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल यूज करेंगे लर्निंग पर्पज से। बट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसके बाद फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाता हूँ। ये अच्छा, ओके, नाउ यू कैन सी, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब, ये सब रियल रियल फील्ड स्टेटस होते हैं एक्चुअल में, रियल डेटा वाले। ठीक है, ये देख लो, रियल डेटा वाले। एंड इसमें मैं बता दूं केवल अकाउंटिंग के नहीं है, केवल अकाउंटिंग के नहीं, इसमें पार्ट के भी होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है दिख रहा है? ये देखो मटेरियल मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, G0117 फ्राइट कस्टम्स प्रोविजंस क्लियरिंग ये भी मटेरियल मैनेजमेंट का ही है गाइस। ठीक है, ये देखो स्क्रैपिंग, ये भी का ही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल का जो फील्ड स्टेटस होते हैं वो यही सब होते हैं। ठीक है, इनके यूज डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में आते हैं। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, आफ्टर दैट प्रोडक्शन प्लानिंग में आते हैं। ठीक है, तो इस इन सब चीजों में इनका यूज होता है। ठीक है, ऑल्दो मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही लूंगा, एक फील्ड स्टेटस यूज करूंगा, दैट आई विल क्रिएट एज ए ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको जस्ट एक मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ बैक एंड आई विल क्रिएट माई ओन, एक सिंगल मैं क्रिएट करूंगा। FSTV में मैं डाल देता हूँ TA टाटा, फिर यहाँ पे फील्ड फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर TA12। ओके, जस्ट क्लिक ऑन सेव। आफ्टर दैट कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा? जस्ट सिलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ग्रुप्स। ओके, जब आप ग्रुप पे क्लिक कर दोगे, गो टू न्यू एंट्री एंड सेम चीज डाल दो। मैं अभी मैंने जो आपको ग्रुप्स दिखाए थे जो रियल थे वो नहीं, मैं कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप कॉपी कर देंगे तो आपको एरर आएंगे, बाद में बहुत सारे एरर आएंगे जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए रिजॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करो, आप सीधा जो आपने अभी ऊपर क्रिएट किया वही डाल दो। ठीक है, एवरीवेयर वी विल यूज द सेम सो दैट कि हम हमारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हो सके। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन सेव। अब
है कि हम जो मैंने बात करी थी, डिस्कस किया था आपसे कि हम फील्ड का स्टेटस कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपने ग्रुप बना दिया, ग्रुप डाला, तो मैंने अभी उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये एक ग्रुप है, मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊंगा फील्ड स्टेटस पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, इस पे जाऊंगा। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे ये ग्रुप दिख रहा है आपको ना, जैसे दिख रहा है जनरल डेटा। अब जनरल डेटा के अंदर क्या क्या चीजें वो देखते हैं। डबल क्लिक ऑन दिस, ये देखो जनरल डेटा में क्या क्या आपका असाइनमेंट नंबर, टेक्स्ट, इनवॉइस रेफरेंस, हैचिंग, कलेक्टेड इनवॉइस, एक्स वाई जेड, ये नॉर्मल जनरल डेटा में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यू कैन सिलेक्ट योर फील्ड कि आपको उसको ऑप्शनल में रखना है, रिक्वायर्ड में करना है, या सप्रेस करना है, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट, सप्रेस भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, और ऑप्शनल भी कर सकते हो, क्लियर। फिर सेव कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे जाओ एडिशनल अकाउंट पे, ये देखिए सेम सप्रेस करना, सप्रेस, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, एक्स वाई जेड, या ऑप्शनल, ऑप्शनल, जो भी है दैट यू कैन डू दिस, ओके। देन गो बैक। तो यहाँ पे जाकर के आप अपने फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और जो आपके क्लाइंट है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक। और लो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया, तो सेम आई विल यूज द सिंगल ग्रुप और सिंगल फील्ड स्टेटस फॉर माय वर्किंग, ओके। लर्निंग के लिए मैं सिंगल यूज करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आई विल असाइन दिस, इसको मैं असाइन करूंगा, ठीक है। मैंने आपको इसका शायद पाथ नहीं बताया ना, लेट मी टू गो बैक। ओके, असाइनमेंट का जो टी कोड है दैट इज OBC5, ओके। तो /n OBC5, प्रेस एंटर। Now you can see the heading assign company code to field status variant, ठीक है। Let me to go back, मैं path के थ्रू आ जाता हूँ, SPRO, press enter, SAP reference IMG, ठीक है। Then go to financial accounting, then global settings, ledger. Now here you will go to field, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है, ठीक है। देन डिफाइन फील्ड स्टेटस हमने अभी डिफाइन कर लिया है, क्रिएट कर लिया। नाउ वी विल गो टू असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ठीक है। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, टी कोड्स इसके, ठीक है। ये देखो गाइस, OBC4 जो मैंने अभी क्रिएट किया आप लोग के सामने दिखाया, तो असाइनमेंट का OBC5, क्लियर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ना असाइनमेंट के लिए सेम, गो टू पोजीशन एंड टाइप ऑफ कंपनी कोड TA, फील्ड स्टेटस सेम TA, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है गाइस। आपका जो फील्ड स्टेटस जो है वो हमने कवर कर लिया ना। कमिंग टू वन मोर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मास्टर डेटा पे, ठीक है। मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशन, जिसपे हमको चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना। अब चार्ट ऑफ अकाउंट होता है क्या वो समझते हैं, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब नया कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रहा है एवरीबॉडी गाइस, अब नया कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रहा है जिसको बोला जाता है मास्टर डेटा, ओके। तो SPRO, प्रेस एंटर, SAP reference IMG, then go to financial accounting, but इस टाइम guys this time we will not go to global settings क्योंकि global settings हमने कर ली, ओके। now we will go to general ledger account, यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग पे, उसके बाद जाएंगे मास्टर डेटा पे, ठीक है। देन विल गो टू GL अकाउंट प्रिपरेशन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, डिफाइन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, ये चारों जो मास्टर डेटा के कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये हमको करने होंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। ठीक है, ये हमको अभी करने होंगे, ठीक है। तो इसका जो टी कोड है, चार्ट में टी कोड्स, इन सबके टी कोड्स पे आप लोग को दिखाई देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट का है OB13, असाइनमेंट कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट है OB62, अकाउंट ग्रुप का है OBD4 एंड डिफाइंड रिटेन अर्निंग है OB53, क्लियर।
अच्छा, टी कोड का वन विंडो में कहीं नहीं आ सकता कि टी कोड हमें कोई देखना हो, वो ऐसा कोई है ठीक, क्या? नहीं नहीं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, डॉक्यूमेंट है मेरे पास टी कोड का, ठीक है। बट ऐसे कहीं ऐसे पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा ऑल दो, ठीक है। आप लोग ऑल दो उसमें सब कुछ होंगे, बट हम जो यहाँ पे यूज करें अकाउंटिंग के, वो आपको देखने हैं, ठीक है। वो सैप में जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना, उनके भी टी कोड है उसमें, ठीक है। बट हाँ। हम जो यूज करें हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार है, ये चार कॉन्फ़िगरेशन हमको करने हैं। बट अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि पहले हम इसको समझेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या, ठीक है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। Theoretically, we have to understand the thing. ओके, यहाँ पे है चार्ट ऑफ अकाउंट, ओके, ठीक है guys, अभी इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, इसको एक बार गो थ्रू करो गाइस आप लोग, एक सेकंड, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट इन एसएपी, ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट होता है कि, यहाँ से गो थ्रू करो, आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि सेम चीज हम लोग करेंगे वहाँ पे। यू आर ऑलमोस्ट नियर टू पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो आप लोग लगभग लगभग पास में ही हो इन द एंड, लगभग का मतलब है कि नेक्स्ट टू क्लास में आप लोग जो वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वी विल बी देयर, ओके गाइस। ओके। हाँ, अभी ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ही है चीज़ों का, बट हमको मालूम होना चाहिए। गो थ्रू करो इसको एक बार। समझ में आया? शैलेंद्र, अजय, काजल गाइस। एक सेकंड। ओके, डाउन करना। ओके। क्लियर? तो यहाँ पे गाइस, चलो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से उठते हैं, ठीक है। अगर इफ यू रिमेंबर, शैलेंद्र एंड टीम, इफ यू गाइस प्रमोट योर सेल्फ, ओके, अगर इफ देर इज सिचुएशन व्हेन यू हैव टू, यू आर गेटिंग प्रमोशन एज ए कंसल्टेंट लेवल, ठीक है। तो जो काम आप अभी करने की सोच रहे हो, ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, ये काम करना पड़ेगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज समझनी है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में, कंसल्टेंट वाले में, कि ये ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफरेंट किया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? यस, ऑपरेटिंग चार्ट में तो जो हमारे डेली यूज के लिए होते हैं, और ग्रुप चार्ट जिसमें हमें कोई रिपोर्ट वगैरह निकालनी हो उसके लिए। कैन यू गिव एनी एग्जांपल? क्या आप एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं उसको? लाइक एज हमें कोई भी एक्सपेंस, जैसे ऑफिस एक्सपेंस वगैरह जो भी है, हम डेली बेस पे बुक कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन हमें मंथली या क्वार्टरली जब रिपोर्ट निकालेंगे तो उसके लिए ग्रुप चार्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है।
ये ठीक है बेसिक ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट है गाइस, ठीक है। दिस इज यूज्ड, ये बात तो सही है कि वो डेली एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट इज क्रिएटेड ओनली फॉर कंपनी कोड। आर यू गेटिंग मी? केवल कंपनी कोड लेवल के लिए हम ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? एंड आई होप कि आप लोगों को कंपनी कोड एंड कंपनी के बीच का डिफरेंस मालूम है, राइट? हाँ, तो कंपनी कोड में आ जाती है कोई भी स्मॉल स्मॉल कंपनी, ठीक है। जैसे कंपनी कोड के अंदर आपकी टीसीएस आ सकती है, टाटा मोटर आ सकती है, टाटा स्टील आ सकती है, ठीक है। They all those are the company code level company organization, and all those are using their operating chart of account. Okay, ओके। operating chart of account. Now coming back to the part that is group chart of account. अब group chart of account कौन सा chart of account होता है? Basically group chart of account is about your the chart of account that is reporting, that is providing the report of all operating chart of account. Is that clear? Is that clear? यस। हाँ, तो ये चीज हमको समझनी है। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट में इंडिविजुअल चार्ट ऑफ अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे शैलेंदर, अजय एंड काजल, आप तीनों की आप तीनों का अपना बिजनेस है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप तीनों की अपनी लीगल एंटिटी, राइट? आपकी अपनी लीगल एंटिटी, तो आपके अपने ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन लेकिन आप तीनों वो किसके किसी एक के अंडर में वर्किंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे अंडर में वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं जब रिपोर्ट करूंगा तो मेरे को रिपोर्टिंग के लिए तीनों का चार्ट ऑफ अकाउंट, एक कॉमन चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज कम्स अंडर द ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, ठीक है। बट इंडिविजुअल लेवल पे इफ यू गाइज आर रिपोर्टिंग तो हमको ये करना पड़ेगा ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। एंड मैं आपको यूज भी बता देता हूँ इसके। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज होता है ओनली फॉर पर्पज ऑफ द पोस्टिंग्स, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज होता है ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट, ठीक है। जब रिपोर्ट देनी होती है तब ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज होता है एसएपी के अंदर, ठीक है। ऑल्दो ये हमारा पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं होता है। ये जो पार्ट होता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट और कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ये जो पार्ट होते हैं ये उनके होते हैं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। जो कम आप इनमें बड़े बड़े सीए ले सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट ले सकते हो, या बड़े बड़े अकाउंटेंट ले सकते हो, ठीक है, जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कंपनी बैलेंस शीट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये उनका पार्ट होता है। हमारा पार्ट जो मेन रहता है वो ये रहता है ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट की क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अभी हम ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोड है मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, OB13, ठीक है। OB13, just click on this. Okay, let me to log on again. टी कोड क्या बताया मैंने? OB13, ओके। लिस्ट ऑफ ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट, ओके, स्लैश SPRO एंटर, सेप रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, again repeating, now we will go to general ledger accounting, master data accounting, okay, because chart of account is your master data, not a global settings, okay. Just go to general ledger accounting, master data, GL account, then preparation, go to preparation. After this you have to go to edit chart of account, just click on this, okay.
Go to new entry and let's fill up the details. So chart of account TA, ठीक है, description, chart of account for, okay, then language, guys, okay, कोई भी language but common English language is there, then English language. Okay, now what will be the length of GL account number? अब GL account number means कि जो हम account create करेंगे ना, कैश, बैंक, डेटा, अकाउंट रिसीवेबल, XYZ, सेल्स, परचेज, तो उनका GL अकाउंट नंबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 10 होता है गाइस, ठीक है, मैक्सिमम आपके 10 होते हैं, ओके, 0 से 10 तक। तो हम लोग 10 डिजिट तक कितने भी ले सकते हैं, बट मैं यूजुअली 4 यूज करता हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग 4 ना। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट ये हमको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसको क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अब इसको हमें असाइन करना है, सो टी कोड फॉर असाइनमेंट OB62, ओके, OB62 /NOB62, ठीक है। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट /N पैक, ओके, SPRO, press enter, save preference ING, then we'll go to कहाँ पे जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then general ledger accounting, master data, GL account preparation, then assign company code to chart of account, okay, just click on this, okay, go to position, type your company code, that is TATA, type your chart of account, same TATA, ठीक है, and click on save, ठीक है। Now we can see data was saved, ठीक है। अभी what is the next, that is we have to define our account group, ठीक है। अभी account group हमको क्रिएट करना है, जिसका टी कोड है OBD4, ओके, सो /N OBD4, ओके गाइस, OBD4। यहाँ पे GL अकाउंट हमें डिफाइन, गाइस, शैलेंद्र एंड अदर गाइस, अब ये आप लोग का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, मेन काम यहाँ पे आप लोग का अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। SPRO, press enter, save preference IMG, then go to financial accounting, then journal ledger, master data, GL account, then then define account group, okay, define account group में एक बार again I am showing you the T codes, display again IMG activity OBD4, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे OB53, that is defined retained earning, तो फर्स्ट OBD4, ठीक है। नाउ यहाँ पे न्यू एंट्री पे जाना है। अब यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या है? टाटा, ठीक है, TA टाटा। अकाउंट ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ एसेट, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में डालना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डालना है, ठीक है, जो भी आप डालना चाहो। यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको रेंज देनी है, याद है मैंने लेंथ सिलेक्ट किया था 4 डिजिट जब व्हेन आई वाज क्रिएटिंग, है ना, तो यहाँ पे आपको देना है लेंथ जो आपने 4 डिजिट सिलेक्ट की है, ठीक है, 1000 to 1999, ठीक है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये तो खैर मैं लर्निंग पर्पज से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे एसेट क्रिएट किया है, ठीक है, बट वी ऑल नो दैट कि फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, राइट। सो आप लोग क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग अलग ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऑल्दो मैं कंबाइंड में यूज करूंगा, बट आप लोग अगर चाहो तो फिक्स्ड एसेट के लिए अलग ग्रुप एंड करंट एसेट के लिए अलग ग्रुप यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर?
हाँ वो ठीक तो है, अपने हिसाब से जितना भी बना सकते हैं हाँ ना। हाँ वो लोग आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं रहता, ठीक है। बट मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे कंबाइनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट लर्निंग पर्पज से ना। अभी ये जो मैंने रेंज दी है 1000 से 199, दैट मीन्स आप लोग समझ ही रहे होगे कि इस रेंज के अंदर मैं केवल एसेट के अंडर में जो भी अकाउंट ग्रुप आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एसेट को रेंज दे दी है, ठीक है ना। कमिंग टू अदर टी टी टाटा, एक सेकेंड। बोलो सर, मिलते हैं फिर। कब मिलेंगे? एक सेकंड गाइस, ये शायद आई थिंक हैंग हो गया है। ओह शिट, आई थिंक ये हैंग हो गया। अभिषेक सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ ये जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे स्केप हो जाएगा, हमें मतलब डेमो यूज के लिए कोई सर्वर वगैरह मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा ना, आप लोग को मैनेजमेंट ने दिया नहीं क्या? मैनेजमेंट नहीं, को अप्रोच अभी तक करो। हमें कुछ नहीं मिला है, तो हम मतलब डायरेक्ट उनसे बात करें ना? हाँ आप उनसे बात करो, देखो आपको अगर सर्वर मेरे साइड से भी चाहिए तो मेरे साइड से भी मिल सकता है, मैनेजमेंट की साइड से भी मिल सकता है, ठीक है। वो ऐसे तो एक बार मतलब उनसे सर्वर बात के करते हैं। वेंडर है, ठीक है, वैसे तो आपको मैनेजमेंट ही देना चाहिए प्रॉपरली। तो हम्म। मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट से बात करो, दे विल प्रोवाइड यू। ठीक है, क्योंकि वही है कि प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये तो स्केप हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मेरे को आप लोग को अप्रोच करो, मैनेजमेंट से अप्रोच करो, बिल्कुल ठीक है। ठीक तो है। प्रैक्टिस तो करना ही है गाइस, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप लोग जैसे बोल रहे हो ना कि आप लोग के काम का चीज नहीं है, बट अगर आप लोग को प्रमोशन मिला ना तो आपको मुझे इन कंसल्टेंट फ्यूचर लेवल ये पे, जरूरत पड़ेगी। हाँ तो अब कंसल्टेंट लेवल पे आपको यही काम करना पड़ेगा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नहीं पोस्टिंग करोगे, ठीक है। हम्म। हाँ तो आप लोग को यही सब काम करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो प्रैक्टिस तो आप लोग को आनी ही चाहिए गाइस, ठीक है, ये होना ही चाहिए। अभी तो सर्वर ले लो, मेरे को लगा कि शायद आप लोग को मिल गया है। नहीं, अभी तक नहीं मिला है। नहीं आप करो, अप्रोच करो मैनेजमेंट से, ठीक है। जैसे आइडियल मत बैठो कि है अवेलेबल है और रिकॉर्डिंग सेशन गाइस यहाँ पे आप लोग को आ रहे होंगे, तो हमने देख ली टॉपिक, कोडिंग हाँ सेशन तो। टॉपिक वाइज वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि 30 डेज के लिए अवेलेबल रहते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं, ठीक है। ओके। हाँ वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, तो बेटर है कि आप उसे क्या करो, सेव करके रख लो अपने किसी भी फोल्डर में, ठीक है। तो ओके। आपको एक आइडिया मिलता जाएगा क्या है कैसे चीज़ें, ठीक है। हम्म। ये अभी मेरा हैंग हो गया ये, ऑल्दो मेरा जैसे सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे लर्निंग के लिए जो सॉफ्टवेयर मिल सकता है वो रिमोट सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर बाहर से डाउनलोड करके रखना पड़ता है। तो मेरा जैसे रिमोट नहीं है, ठीक है, रिमोट समझ रहे हो ना, वर्चुअल डेस्कटॉप हाँ हाँ, टाइप में। समझ गए। हाँ तो वो उस टाइप में आपको मिल सकता है, ठीक है, और अदरवाइज इस टाइप का भी मिल सकता है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ लाइबिलिटीज, ओके, लाइबिलिटीज, उसको मैं रेंज दे रहा हूँ 200 से से 2999, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे एक्सपेंस, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा इनकम।
ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट कर लिए, ठीक है। ओके यहाँ पे हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सेव, सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब एक एक पार्ट रह गया, हम उसको भी कवर कर लेते हैं, दैट इज योर रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग आप लोग को मालूम है ना गाइस क्या होता है? क्या? कोड है OB53, ठीक है, /NOB53, OB53। So you have to put your chart of account, okay? So TA, okay, ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है उसको बोल दो। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि कोई यूज कर रहा है उसको, यूजर। सो ओके, तो टी कोड ध्यान में आ गया गाइस, OB53 है, ठीक है, /1, बैक जा रहा हूँ, ठीक है, SPRO, प्रेस एंटर। तब तक गाइस, यस, रिटेन अर्निंग क्या होता है ऐसे प्रेफरेंस टाइम जी? जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL अकाउंट प्रिपरेशन, देन डिफाइन रिटेन अर्निंग, ठीक है, दिस वन। इसका जो टी कोड है OB53, ओके। यहाँ पे एडिशनल फॉन्ट, डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट एंड MG एक्टिविटी। सो इसको राइट साइड में थोड़ा सा ले जाओ, ये देखो OB53 टी कोड है, ठीक है, सेम OB53। so just double click on this data, data can only be displayed blocked by another user। अब ये कौन सा यूजर? ये वाला यूजर यूज कर 050 050, ठीक है, 050। so /NSM, press enter, 050 050। टी कोड OB53 ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट आपको डालना है एज यूजुअल। नाउ कम टू दिस, तो यहाँ पे ओके, सो बिफोर टू क्रिएट दिस, बताइए मेरे को, यस गाइस, रिटेन अर्निंग क्या होता है मालूम है ना आप लोग को? रिटेन अर्निंग, नहीं सर। रिटेन अर्निंग तो ओके, सो गाइस रिटेन अर्निंग होता है, देखो बेसिकली जो रिटेन अर्निंग होता है ना, दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब बैलेंस शीट मैच की जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल में, तो जो भी आपका प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, जो भी निकल रहा है, तो उसका कुछ परसेंट जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसका कुछ परसेंट वो लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में डालते हैं। तो बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग का यूज क्या होता है? बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट होता है, ये कंपनी का पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है, ओके कंपनी का पर्सनल अकाउंट हो जाता है, हाँ, कंपनी का पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो अगर इन केस कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है या कुछ हो रहा है, सो उन दैट केस की जो भी शेयर होल्डर्स है, वो अपना पैसा ना यूज करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में जो प्रॉफिट जो डालते हैं, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो भी डालते हैं वो लोग ना, तो उस पैसे को यूज करते हैं, सो दैट दे कैन टेक द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कोविड टाइम पे सिचुएशंस बहुत ऐसी रही हैं, जितने भी स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल बिजनेसेस हैं वो सारे शट हो गए हैं, राइट। बट अगर आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां चल रही है, हालांकि लॉस इनको भी हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ है, कोविड टाइम पे लॉस इनको भी हुआ है। बट इन्होंने क्या किया है, दे हैव जस्ट क्रिएटेड, इनके पास रिटेन्ड अर्निंग वाला पार्ट था, ठीक है, उस रिटेन्ड अर्निंग से इन्होंने क्या किया है, मैनेज किया, ठीक है, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी लाई, एसेट्स के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, इन्होंने मीटिंग के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट किए, ठीक है। तो ये सब करने में जो पैसा लगता है वो कम कहाँ से यूज किया उन्होंने? रिटेन अर्निंग अकाउंट से पैसा यूज किया, ठीक है। और रिटेन अर्निंग में पैसा किसका जाता है? केवल शेयर होल्डर्स का, ठीक है, केवल कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा जाता है। तो हमें भी यहाँ पे एक रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रिएट करना होता है, सो दैट कि इन केस हमको मान के चलना है कि इन केस अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में,
ठीक है, कि हमारा बिजनेस शटडाउन और या कुछ हो तो उस केस में हम रिटेन अर्निंग अकाउंट को यूज कर सकें। ठीक है, ऑल्दो इसका यूज, इस अकाउंट का यूज रेगुलर बेस पे नहीं होता है, रिमेंबर, रेगुलर ओके, पे, बट ये ये एक पार्ट। लाइक एज ए कैपिटल अकाउंट। हाँ, आप उसको कैपिटल अकाउंट भी, रिजर्व फंड बोल सकते हो। कैपिटल रिजर्व तो सरप्लस तो हमारे यहाँ जो चलता है। होता है। हाँ चलता है ना, हाँ तो बस वही है, वही अकाउंट है। ओके। हाँ ठीक है, तो एक उसका मैंने आपको यूज बता दिया कि क्या है। तो आपका जैसे रिजर्व सरप्लस वाला है या रिजर्व फंड वाला है ना, तो वो यहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, सो ऑल्दो यहाँ पे लर्निंग हो रही है तो मैं कोई नाम नहीं डालूंगा, मैं सीधा एक्स एक्स डालता हूँ। और अकाउंट में यहाँ पे हमको रेंज डालनी है। तो रेंज कौन सी रहेगी, जो लाइबिलिटी की रेंज मैंने क्रिएट की थी ना, उसके बीच की कोई भी अकाउंट रहेगा यहाँ पे। जो मैं डाल रहा हूँ जैसे 2100, ठीक है, 2100 डाल रहे, क्योंकि लाइबिलिटी की रेंज 2000 थी, राइट। 1000 से, अगर मैं इससे पहले जो मैंने अकाउंट ग्रुप क्रिएट किए थे तो उसमें लाइबिलिटी की रेंज 2000 से 2999 तक थी। ठीक है, तो मैंने उसके बीच का कोई भी एक सिंगल नंबर ले लिया है जो कि रिजर्व फंड या रिजर्व सरप्लस या रिटेन अर्निंग डिफाइन कर रहा है। प्रेस एंटर। ठीक है, एक सेकंड हो गया, 2100, ठीक है, सिलेक्टेड, सेव। एक नॉर्मल मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि अभी ये क्रिएट नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अगेन आपको पॉपअप आ गया ना, जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन टिक एंड सेव। अब आप नीचे देखोगे, सो चेंजेस हैव बीन मेड। ठीक है, तो आपने रिटेन अर्निंग अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ ठीक है, सो गाइस एज ऑफ नाउ इट्स लेट्स वी फिनिश द सेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगी उसमें मे बी हम लोग ट्रांजेक्शन्स पोस्टिंग करें, ठीक है, जनरल एंट्री। ओके। ठीक है, एंड जो एरर आ सकते हैं वो वो हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नाइस वीकेंड। थैंक यू गाइस, सेम टू यू, सेम टू यू।